Hello and good morning everyone. How are you all? I hope सब बढ़िया होंगे. So in our previous class we have started new chapter of macro, that was government budget, and till yet we have discussed the meaning and initial 6 objectives of budget, right? We have discussed the first 6 objectives. Number 7 was pending, that was employment generation. Simple सा point है कि government by using its budgetary policy also try to generate more and more employment in the economy. इनका टारगेट होता है कि इकोनॉमी में हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी है, अलग अलग सेक्शंस में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, अलग अलग पॉलिसीज. इससे रिलेटेड आपने कुछ पार्ट पढ़ा था पॉवर्टी वाले चैप्टर में, जिसमें आपने पढ़ा था गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी. Then after, now we have to discuss the new topic, that is components of government budget. If we talk about budget, then budget is divided into 2 parts, that is revenue budget and capital budget. In revenue budget, we record all the receipts and expenditures of government which neither affect the asset nor affect the liability for government. गवर्नमेंट की जितनी भी असेट है और लाइबिलिटी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ऐसी सारी चीजें, ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के रेवेन्यू नेचर के बजट में आएंगे. All those receipts or expenditure which leaves no impact on the asset or liability of government. And capital budget includes 2 components: capital receipts and capital expenditure. These are the receipts and expenditure which impact the state of asset and liability of government. अब देखिए बजट रिसिप्ट की बात करते हैं. हम इसको ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमने क्या किया, रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट की जगह बजट रिसिप्ट और बजट पेमेंट में बजट को डिवाइड कर दिया. So budget receipts will include 2 types of receipts: revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts are those receipts of government which neither impact the asset nor affect the liability of the government. अब क्या इम्पैक्ट हो सकता है असेट और लाइबिलिटी पे रिसिप्ट से? पहले तो हमें ये देख लेते हैं. यहाँ आपको बुक में साइड में आफ्टर रेवेन्यू रिसिप्ट लिख लेना है. रिसिप्ट अगर हो रही है तो उससे पॉसिबिलिटी है कि आपकी असेट जो है वो रिड्यूस हो जाए. रिसिप्ट अगर हो रही है तो असेट के रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, असेट रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है, या फिर पॉसिबिलिटी है लायबिलिटी क्रिएशन की. ये रिसिप्ट से रिलेटेड कंपोनेंट है. रिसिप्ट से रिलेटेड ये एक छोटा सा पार्ट है कि जब भी रिसिप्ट होती है तो या तो असेट रिडक्शन हो सकता है या लायबिलिटी क्रिएशन हो सकता है. अब ऐसे में अगर आपको रेवेन्यू नेचर की कोई भी रिसिप्ट हो रही है तो उसका सिंपल सा मीनिंग है ना तो असेट रिडक्शन होगा ना लायबिलिटी क्रिएशन. यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑल दोस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच नाइदर रिड्यूसेस द असेट ऑफ गवर्नमेंट nor create any liability. And capital receipts are the receipts of government which either creates a reduction in asset or creates a liability for government. दोनों में से कोई एक काम होगा. अब आप देखिए कैपिटल रिसिप्ट पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत सिंपल से. 2 बातें दिमाग में ध्यान रखना है, या तो गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस होगी या गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होगी फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट. सो हैव अ लुक ऑन नंबर 1, बोरोइंग. In case the government has borrowed money from any source, it will definitely lead to inflow of money, but along with this inflow there will be an increase in liability for government. So borrowing is a part of capital receipt. Second one, recovery of loan. If government has given loan to any party, then such loan will be written on the asset side for government. Asset hai government. In case any person repays the loan, means government receives a recovery on account of the loan given, then such recovery will reduce the asset of government and it will cause an inflow of money. So we are treating it as a capital receipt. And number 3, other receipts, which includes receipts like disinvestment and small savings by people in government securities. Detail में पढ़ेंगे, revenue receipt को भी पढ़ेंगे. It includes 2 types of receipts, that is tax revenue and non-tax revenue. टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होती है. इनको अभी हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं. हैव अ लुक एट इट. रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई लिख के. The receipts which neither create any liability nor cause any reduction in asset. पहले आपको वो 2 एरोस ध्यान रखने हैं कि अगर रिसिप्ट हो रही है तो पॉसिबिलिटीज है दैट देयर विल बी अ रिडक्शन इन योर एसेट और देयर विल बी अ इंक्रीमेंट इन योर लायबिलिटी. बट रेवेन्यू नेचर की हो रही है तो ये दोनों ही काम नहीं होंगे. दीज आर रेकरिंग रिसिप्ट्स. यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन.
neither create a liability nor reduces any asset. ना तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट, ना ही गवर्नमेंट की किसी एसेट को रिड्यूस कर रही है। ये दोनों कंडीशन अगर किसी रिसिप्ट से सेटिस्फाई हो रही है, then such receipt will be treated as revenue receipt. Now have a look, रेवेन्यू रिसिप्ट में सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू होता है, आप सबको अच्छे से पता है। वी ऑल आर पेइंग सम टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। जो भी टैक्स का पेमेंट हम कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट की कोई फिक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, हमारी तरफ से कंपल्सरी पेमेंट है। गवर्नमेंट उस टैक्स रिसिप्ट को यूज करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो टैक्स रिसिप्ट इज बेसिकली अ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट. Now taxes are of two types. You have already gone through the topic in Indian ECO. Direct tax, the burden of which cannot be shifted on to another. For example, income tax, profit tax. And indirect tax, the burden of which can be shifted on to another person. For example, goods and services tax. Right? आगे देखिए. Now a difference between direct tax and indirect tax is given, which you have to do by yourself. इसके बाद there are some categories you need to classify them into direct and indirect tax. We are going with non-tax revenue. Non-tax revenue means income of government, or we can say money receipt of government from any other source which is other than tax, but which is not affecting the state of asset and liability for the government. Asset और liability पे impact नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है एक important बात के फॉर्म. आगे देखिए, have a look. नेक्स्ट ये आपको कह रहे हैं कौन कौन सी नॉन टैक्स रेवेन्यू है. नंबर 1, इंटरेस्ट. अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देती है, उस लोन पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव करती है, तो ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है. नॉन टैक्स रेवेन्यू, द इंटरेस्ट रिसीव बाय गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां से गवर्नमेंट को प्रॉफिट या डिविडेंड हो रहा है, again this will not impact the asset and liability state of government, so we will treat it as a part of non-tax revenue. Now fees, the charges imposed by government to cover the cost of recurring services provided by it. Government हमें कुछ services दे रही है, उन services के बदले में government हमसे कुछ fees लेती है. जैसे काफी बार कुछ रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, कभी हमें लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस फीस हो गई, ऐसी बहुत सारी फीस. तो वो सारी फीस जो गवर्नमेंट ले रही है सर्विसेज पे, वो फीस भी इसी का पार्ट है. कौन सा? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट. नाउ लाइसेंस फी अलग से दे दिया, अगर लाइसेंस बनवाने पे कोई फीस हमने पे की तो वो फाइन्स और पेनल्टीज. हम हेलमेट नहीं लगा के निकले, गवर्नमेंट ने हमें पेनलाइज कर दिया, दैट फाइन विल बी अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट. एस्टीट इज इंपॉर्टेंट. If any person dies without leaving any legal heir, then such property will be forfeited by government, and the government will receive some money on the behalf of such property, because government will definitely sell the property. So such income will be treated as escheat income. Now, if government receives any kind of gift and grant from any government or individual, then that will be treated as a non-tax revenue receipt. फॉर फ्यूचर अगर गवर्नमेंट ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी लीगल ऑर्डर को फुलफिल नहीं करने की वजह से आपकी कोई प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, तो वो फॉर फ्यूचर में आएगा. लास्ट वन, स्पेशल असेसमेंट. इन केस हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हमारी कोई असेट है, उस असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट, देन सच स्पेशल असेसमेंट पेमेंट विल बी गिवन बाय अस टू गवर्नमेंट. जैसे अगर घरसीसर में रेलवे स्टेशन ओपन हो जाता है, तो यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी. तो ऐसे में द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी विल हैव टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू गवर्नमेंट, because this is the improvement in property, because this increment in the value of property is because of the developmental activity of government. So government is having a right to recover some amount in the form of special assessment. Now tax revenue, non-tax revenue. Tax revenue, it is a compulsory payment, right? Non-tax revenue is not compulsory, it depends upon the given situations. Capital receipts, it must fulfill these two conditions. What are the two conditions? Either creates a liability or reduces an asset. या तो liability creation होगा या फिर asset reduce होगा. अब capital receipt के कुछ sources अभी मैंने आपको बता दिए थे, ये start करते टाइम, right? Borrowing हो गया, disinvestment हो गया, small saving हो गया. Capital receipts can further be classified into two parts: debt creating capital receipt, non-debt creating capital receipt. Debt creating capital receipts are those receipts जो गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन क्रिएट कर रही है, लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, और नॉन डेट क्रिएटिंग वो जो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर.
बोरोइंग वाला पार्ट फर्स्ट में आएगा, बाकी सारा जितनी भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हुई है वो नॉन डेब्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि इससे मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं क्रिएट हुआ, राइट। उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन आप एक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। Now we have to go with the budget expenditure part. Budget expenditure. गवर्नमेंट का जितना भी मॉनेटरी आउटफ्लो प्लान किया हुआ है किसी भी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो सारा मॉनेटरी आउटफ्लो गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर है। Now expenditure will either increase the asset or reduce the liability. क्योंकि मैं पैसा खर्च कर रही हूँ तो या तो मैंने अपने लिए एसेट क्रिएशन किया होगा या फिर मैंने अपनी किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया होगा, राइट। मैंने किसी बोरोइंग का रीपेमेंट कर दिया होगा या ऐसा किसी भी तरीके से अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस किया होगा। Now, revenue nature expenditures are all those expenditures which neither create any asset for government nor causes reduction in any liability. ना तो asset creation हो रहा है ना आपकी liability में reduction हो रहा है, तो ऐसे सभी एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट पेंशन का पेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज मेंटेन कर रही है, किसी स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है या ऐसा कुछ भी, ये होंगे बेटा आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिकॉज इससे दोनों ही काम नहीं हुए, ना तो असेट क्रिएशन हुआ ना लायबिलिटी रिडक्शन। ये टू कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। कौन सी? it should not create any asset for government and it should not reduce the liability of government, right। फिर आगे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें यस आ जाए, इट शुड आइदर क्रिएट एनी एसेट और रिड्यूस एनी लायबिलिटी। दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, या तो एसेट क्रिएशन होना चाहिए या लायबिलिटी रिडक्शन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा है तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इकोनॉमी में डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स बनवाई, एक्सपेंडिचर किया, तो इससे मेरी इकोनॉमी में मेरे लिए असेट्स क्रिएट हो गई, गवर्नमेंट के लिए असेट्स क्रिएट हो गए, तो ये कैपिटल नेचर। या मैंने अपनी पुरानी बोरोइंग को रीपे कर दिया, मेरी जो पुरानी बोरोइंग चल रही थी उसको रीपे कर दिया, तो रीपे करने से मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। इसको भी हम कैसे एक्सपेंडिचर में कंसीडर करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म। नाउ how will you categorize whether a expenditure is revenue or capital in nature? If it is of recurring nature, then it will be treated as revenue expenditure, and you should also check its impact on the state of asset and liability of the government. If it leaves no impact, then it will be treated as revenue. If it leaves any impact on asset and liability, it will be treated as capital. Now there are three different types of budget which we must complete: balanced budget, surplus budget, and deficit budget. Balanced budget means government's estimated receipts are exactly equal to estimated expenditure. जितना सोचा है रिसिप्ट उतना ही एक्सपेंडिचर प्लान किया है, तो ये बैलेंस बजट है। सरप्लस बजट इफ द रिसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर, ये इन्फ्लेशन के टाइम यूज होता है, आपको ध्यान रखना है दैट दिस बजट इज यूज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, and the deficit budget it is used during deflation, the budget when the government has estimated a less revenue than the expenditure, revenue कम expenditures are, डिफ्लेशन में हमें मनी का फ्लो कम करना है तो ऐसे में हमने डेफिसिट बजट प्लान किया होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में वी विल हैव टू कवर द टॉपिक्स budgetary deficit, including the main topic is budgetary deficit. It includes three subtopics: revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. So we will complete this part in our next class. So before that, before starting our next class, you have to ensure that you should cover these topics by yourself. You have to ensure that you have covered chapter number 10 up to page number 10.13 up to this part, the deficit budget part. बहुत सारे MCQs बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके बाद में ये जो कैटेगराइजेशन है बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर का, इस कैटेगराइजेशन के टाइम पे आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ। आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कैपिटल रिसिप्ट की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिसिप्ट जो होती है उस रिसिप्ट से असेट की अगर मैं बात करूं तो असेट रिडक्शन के चांसेस बनते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा आया तो हो सकता है मैंने अपनी असेट को सेल आउट किया, राइट,
और रिसिप्ट से अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी क्रिएशन के चांसेस रहते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसी रिसिप्ट जिससे ये दोनों ही नहीं हो रहे, ना तो एसेट रिडक्शन ना लायबिलिटी क्रिएशन, वो कैपिटल नेचर की होगी। सॉरी, जिससे ये दोनों ही नहीं हो रहे वो रेवेन्यू नेचर की होगी, और जिनसे इन दोनों में से कोई एक काम हो रहा है वो कैपिटल नेचर की। एक्सपेंडिचर में इसका जस्ट अपोजिट, एक्सपेंडिचर असेट क्रिएशन और रिसिप्ट ये लायबिलिटी रिडक्शन। असेट क्रिएशन और लायबिलिटी रिडक्शन हो सकता है एक्सपेंडिचर से, तो आपको वो यहाँ पे इसको ऐसे चेंज कर देना है। जब आप एक्सपेंडिचर की बात करें तो असेट क्रिएट होगी या तो मेरी किसी भी तरीके से एक्सपेंडिचर से, और या फिर मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। अब इसके बेसिस पे आप वो चारों डेफिनेशन फ्रेम करेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। करके देखिए, कोई भी वर्ड में डाउट हो तो क्लियर आउट करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।